Hello student, today we discuss about the chapter 3 theory of demand. In previous chapter you studied about the consumer equilibrium. Consumer gets maximum satisfaction at the point from the given income and price of a commodity. So consumer derive the maximum utility from consumption of a commodity. It means consumer demand of a commodity due to possess the utility of a commodity. In this chapter we discuss about the meaning of demand, demand function, determinants of demand, demand schedule, demand curve and law of demand. First we start the understand the meaning of demand. In general way, demand means desire, need, wish or wants. But in economic sense, demand means the various quantities of a commodity that a consumer is ready to buy at different prices during given period of time. But in the desire, we only desire of a commodity and not have the money to purchase such commodity. In want, we want to purchase a commodity but not ready to spend income to spend on such commodity. So desire, wants, need, wish are the not demand. Demand means the various quantities of a good or commodity that a consumer is ready to buy at different prices during given. It is the future concept. It is the estimation when a consumer wants to buy a commodity at given price or market price and given time. So there are three components in a demand. First, a commodity. Second, price, market price. Third, given time. These three components make the demand of a commodity. We know demand of a commodity is affected from the various factors like price of a commodity, income of a consumer, price of related goods and future expectation of price, taste and preference, habits, etc. So these are the factors which affect the demand of a commodity. ये वे फैक्टर हैं जो एक कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करते हैं, यानी घटाते बढ़ाते हैं, जिसके कारण डिमांड इफेक्ट होती है. तो यहाँ डिमांड फंक्शन का मतलब कि जब हम रिलेशन बताते हैं गुड्स के डिमांड और उसके फैक्टर्स के बीच, तो उसको डिमांड फंक्शन कहते हैं. डिमांड फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कम्युनिटी. मैथमेटिकली dx मतलब डिमांड ऑफ x इज इक्वल टू फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ x
price of related goods, consumer income, taste and preference, future expectation of price. In a next topic, I explain all the determinants of demand, but only here we know the determinants only. Price of a commodity, price of related goods, income of a consumer, taste and preference, future price. Now we understand the meaning of demand schedule. Demand schedule is a tabular presentation of the relation between price and demand of a commodity. When depicts the inverse relation between price and quantity demand of a commodity in tabular form, such as price of X 5, 10, 15, 20 and quantity of such commodity 400, 300, 200, 1. Depicts in tabular form known as demand schedule. It may be two types, individual demand schedule and market demand schedule, and depicts the tabular presentation of demand and price of a commodity of a individual or single consumer in tabular form known as individual demand schedule. Such as विनीत, रमेश का अगर हम इंडिविजुअल डिमांड को दिखाएं टेबुलर फॉर्म में, डिफरेंट प्राइस पर वो कितना डिमांड करता है उसको दिखाएं, तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में आप देख रहे हैं कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है डिमांड कम करता जा रहा है, ठीक है, कंज्यूमर डिमांड कम करता है। यहाँ एक रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है जो कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, मार्केट डिमांड शेड्यूल, इट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन प्राइस and quantity demand of a commodity when all the consumer purchase of a commodity in the market. जो सभी कंज्यूमर परचेज कर रहे हैं उन सबके डिमांड को जो है टेबुलर प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाएं तो उसको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ये आप सीख लिए होंगे। नेक्स्ट, डिमांड कर्व, व्हेन डिमांड शेड्यूल depicted in the form of graphic presentation known as demand curve। जब इसी डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफ पर दिखाएंगे तो एक डायग्राम मिलेगा, उसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। या दूसरे तरह से, इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, it is the graphical presentation of demand schedule which shows the inverse relationship between price and demand of a commodity। जो inverse relation, negative relation को दिखाता है। so demand curve is downward sloping curve from left to right which show the negative relation between price and demand of a commodity, प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कम्युनिटी। प्राइस को हम ओ वाई एक्सिस पर लेंगे और क्वांटिटी को, सॉरी, प्राइस को ओ वाई एक्सिस पर लेंगे और क्वांटिटी को ओ एक्स एक्सिस पर। हम इसी डिमांड शेड्यूल को यहाँ डिपिक्ट कर रहे हैं ग्राफ पेपर पर, तो जो हमको पॉइंट्स मिलेंगे उनको मिला देंगे तो वो डिमांड कर्व होगा। ये डिमांड कर्व जो है ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी ऊपर जो है प्राइस ज़्यादा होने पर कम डिमांड है और प्राइस कम होने पर ज़्यादा डिमांड को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके बेस पर हम लोग जो है ये स्टडी करेंगे आगे लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन यहाँ पर डिमांड कर्व में भी आल्सो टू टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड कर्व व्हेन डिपिक्ट्स द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफ पर दिखाएं तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहेंगे। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में एक डिमांड कर्व होगी, ठीक है, एक कंज्यूमर की डिमांड होगी, उसको डिपिक्ट करेंगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड। व्हेन डिपिक्ट्स द मार्केट डिमांड शेड्यूल ऑन ग्राफ पेपर, ठीक है, नोन एज मार्केट डिमांड कर्व। इसमें जितने भी कंज्यूमर हैं जो परचेज अपनी डिमांड कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस पर, उनके अलग अलग जो है डिमांड कर्व को हम दिखाएंगे, फिर उनका टोटल करके दिखाएंगे तो उसको मार्केट डिमांड कर्व के नाम से कहते हैं। सपोज करो एक ही डिमांड कर्व जो है D1 है और ए
बी की डिमांड कर्व D2 है। इन दोनों को सम करके दिखाएंगे मार्केट में, तो ये जो है नेक्स्ट जो है मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। और मार्केट डिमांड कर्व भी यहाँ पर जो है वो निगेटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, यहाँ पर एक कर्व है, तो ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है जब कांस्टेंट रेट से डिमांड बढ़ रही हो या कांस्टेंट रेट से कम हो रही हो, तो उसको हम जो है वो स्ट्रेट लाइन में दिखा सकते हैं। और जब घट बढ़ रही हो बिना कांस्टेंट रेशियो में, तो उसको हम एक कर्व के रूप में दिखा सकते हैं। तो ये जो है कॉन्वेक्स फॉर्म में भी हो सकती है, कॉन्केव फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से बनाएंगे। तो ये जो कर्व है ये शो कर रही है निगेटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, यानी इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लॉ ऑफ डिमांड। अब इनको मिला करके हम एक लॉ ऑफ डिमांड, जब भी हम लोग जो है मार्केट में जो भी कंज्यूमर परचेज करने जा रहा है वो इसी पैटर्न पर डिमांड करता है कि जब प्राइस कम होती है तो किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करता है, और प्राइस जब अधिक होती है तो उसकी डिमांड कर। तो एक रेशनल कंज्यूमर जो है वो सभी इसी तरह का जो है व्यवहार करते हैं। तो ये एक नियम बन जाता है, तो जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड का नियम करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड करते हैं, ठीक है। और कब, जब ये फैक्टर्स, ये जो डिटर्मिनेंट्स है प्राइस को छोड़ के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे तभी ये अप्लाई होगा। तो इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी अदर फैक्टर्स जो है कांस्टेंट होंगे तब जा करके ये लागू होगा, ठीक है। तो अब इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। अब अगर हम डिमांड शेड्यूल से इसको शो करें तो हमने एक डिमांड शेड्यूल यहाँ ले लिया, ठीक है। डिमांड शेड्यूल बनाया जिसमें Px प्राइस ऑफ कमोडिटी और Qx क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, यानी डिमांड ले लिए। अब प्राइस 5 रुपीज है तो 400, 10 रुपीज है तो 300, 15 रुपीज है तो 200, 20 रुपीज है तो 100। मतलब कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है कंज्यूमर जो है डिमांड को कम कर रहा है, मतलब कि इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड में। ऐसा ही सभी कंज्यूमर बिहेव करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन द शेड्यूल व्हेन प्राइस राइजेज डिमांड ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, which shows the inverse relation between price and demand of a commodity. It can be depicted with the help of diagram. We take the price on y axis and quantity demand on ox axis, ठीक है। When price rises, demand falls. When price low, then demand increases. It shows the downward sloping curve from left to right, which known as negatively downward sloping curve. तो demand curve always become the negatively downward sloping curve due to other factors remaining constant. When price affect the demand of a commodity and other factors are constant, then demand curve always negatively downward sloping curve. It shows the inverse relationship between price and demand of a कमोडिटी। बच्चों समझ में आ गया? थैंक यू।